Yes, guys, let's start today's session. That is illustration number 2, Shilpa and Katrina's problem. Okay? Yes. Yes. So, question is from the following trial balance and adjustment given below are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 2019 balance sheet as on that date in that books of Shilpa and Katrina. Trial balance. Land and building, furnitures and editor stock. Stock is given 2018 and trial balance is 2019. That means this is a opening stock. Yes. Bad debts, printing and stationery, wages, salaries, carriage inward, sales returns, drawings Shilpa 2000, Katrina 3000, discount, advance given to Shahrukh, cash in hand, cash at bank, interest, commission, royalties, purchases. Okay. Capital Shilpa, Katrina, bills payable, bank overdraft, purchase returns, sundry debtors, bank loan, interest received, RDD, reserve for doubtful debts, and 1000, and sales 1,20,000. Royalties 2,000, purchases 50,000. Okay. So let's start and adjustment. The stock is hand was valued at 58,000 on 31st. Okay. Stock in hand was, that means 31st March year ending there was a stock available in the business 58,000. Outstanding expenses royalties 1,500 and wages 800. Salaries paid in advance to staff 2,000. Create a provision for bad debts 1,000. Reserve for doubtful debts 3% on sundry debtors. Depreciation land on building 5% and 10% respectively. Furniture 10% respectively. Okay. So let's start our problem. Yes. Yes, guys. So let's start. So this is in the books of Shilpa and Katrina trading and P&L account for the year ended 31st March 2019. So this is trading account. I have not sufficient space here to continue trading and P&L. First of all, I finish trading, then P&L in same account. You have prepare in your one account only trading account. After that balance carried out in P&L account. Okay. Yes. So here working notes. Okay, guys. Here working notes. Yes. So first ट्रेडिंग अकाउंट में पहला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक 65,000. to purchase how much 50,000. less returns कुछ है returns. Yes, there are a purchase returns. How much 14,018, sorry 1,418. So how much it's cost 48,500.
20. 48,520. To wages, some adjustment is there. वेजेस के लिए कुछ एडजस्टमेंट पहले याद रखो, जब भी हम लोग करते हैं तो एडजस्टमेंट चेक करना. हर ट्रांजैक्शन जो भी दिया है, ट्रेडिंग हो, P&L हो, बैलेंस शीट में करने से पहले पहले एडजस्टमेंट देखना, एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है. सो वेजेस के ऊपर एक एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो वेजेस इनर कॉलम 800, आउटस्टैंडिंग मीन्स देना बाकी है, वेजेस सॉरी 3000, और आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, 3800. उसके बाद रॉयल्टीज कितना है, रॉयल्टीज 2000, एड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज. कितना है आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज 15. कितना हुआ टोटल 3500. ओके. इसके बाद टू कैरेज इनवर्ड, कितना है कैरेज इनवर्ड 4000, और हो गया. इतना ही है ना, कुछ इसमें नहीं है. आउटस्टैंडिंग था ऐड करे, एडवांस रहे तो लेस करना. क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग दैट मीन्स वो इस ईयर का एक्सपेंस है जो आपने पे नहीं किया, और एडवांस मीन्स वो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, आपने एडवांस में पे किया, इसीलिए उसे लेस करते हैं. जो इस ईयर का नहीं है उसे लेस करते हैं, और जो एक्सपेंस इस ईयर का है उसे ऐड करते हैं. बाय सेल्स हाउ मच 1,20,000. ओके. उसमें से लेस रिटर्न्स 2000, तो कितना बचा 118. ओके. कुछ प्रोपराइटर ने गुड्स नहीं लिया है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ फायर्स में नहीं गया, कुछ ड्राइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है. कितना है क्लोजिंग स्टॉक 58,000. ओके. यस. सो क्लोजिंग स्टॉक 1,76,000 टोटल, 1,76,000 टोटल. उसमें से ये टोटल इतना हुआ, इसमें से ये माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट 51,180 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन. ओके. प्लीज कॉपी.
So let's start P&L account. Have you copied this? Yes. So P&L account. This is trading account. This is gross profit. Okay. Gross profit brought down. कितना है? Gross profit brought down 51,180. 51,180. Okay, this is gross profit. Now let's start P&L account. This is P&L account. That means this continuum of that account. Yes. So first, what is there? Two salaries. Two salaries. Any salary adjustment is there? Salaries. Salaries 5,000. 5,000 salaries के ऊपर adjustment था. Advance दिया है. So less advance salary. Advance salary 2,000. 3,000. Okay. That none after to printing and stationery. Printing and stationery. Free stationery 4,000. Printing and stationery 4,000. To printing and stationery 4,000. To interest. To interest 1,000. To commission 2,000. Then after discount, how much discount? 2,030. And bad debts. Okay, let's do some working notes. Okay, let's do some working notes. Yes, here working notes about debtors. Working note. What is that? Debtors. So total debtors, how much? 40,000. Okay, and less bad debts. Bad debts 1,000. 39,000. Less RDD 3%. Okay, 1,170 is reserved for doubtful debts, and this comes 37,000. 8
30. Okay, see here. 1 minute guys, please concentrate here. डेटास, टोटल डेटास गिवन इन ट्रायल बैलेंस 40,000. ओके, ट्रायल बैलेंस में आपको कितना डेटा दिया है? 40,000 दिया है. देख लीजिए एक बार. यस, सन्ड्री डेटास 40,000. सो स्टार्टिंग में आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसलिए आपने 40,000 लिखा. उसमें से उसने बोला है कि ट्रायल बैलेंस के बाद बैड डेट्स कितने? 1,000 बैड डेट्स है. मतलब कि ये लोग हमें पैसे देने वाले नहीं है, जो हमारा प्रॉफिट नहीं है. मतलब 40,000 कैश नहीं है, 1,000 मिलने वाला नहीं है, उसे निकाल दिया हमने. सो ये बैड है, इसलिए 1,000 निकाले, 39,000 बचा. ये 39,000 में से और कुछ है जो डाउट है, हम बोल नहीं सकते वो भी मिलता नहीं मिलता. वो कितना है? पूरे डेटास पर 3% है बोला है. तो अभी बचा हुआ डेटास कितना है? 39,000. उस पर 3% निकालना, नॉट 40,000, क्योंकि 40,000 टोटल था, उसमें से बैड डेट्स हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो लोग हमें देने वाले नहीं है. जो बचे उसमें भी डाउट है, तो इसलिए पहले बैड डेट्स निकाले, उसके बाद बचे हुए अमाउंट में 3% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स निकाले. 3% के हिसाब से निकालने पर कितना आया? 1170. 1170. तो ये 1170 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. और टोटल डेट्स कितने? टोटल डेट्स कितने? 37,830. अभी यहाँ पर करेंगे हम लोग. सो टू बैड डेट्स, ओल्ड है ये. सॉरी 400. ओल्ड बैड डेट्स कितना है? 400. उसके बाद ऐड बैड डेट्स न्यू. ये ओल्ड है और ये न्यू है. न्यू कितना है? 1,000. ओके, न्यू कितना है? 1,000. ओके, और उसके बाद तो दोनों मिलके कितना हो गया? और ऐड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू. कितना ये? 1170. तो ये टोटल मिलके कितना हो गया? ऐड होके 2,570. और उसमें से लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड. तो ये कितना है? 1,000. ये आरआरडी ओल्ड जो है आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है. तो टोटल कितना बचा भी? 1570. 1570. यहाँ पर अच्छी तरह याद देखिए. 1570 एक बार अच्छी तरह देख लीजिए. आपको बैड डेट्स है, ओल्ड है, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है. ये ऑलरेडी हमने ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर चुकी है. इसके लिए फिर से एंट्री करें तो डबल एंट्री हो जाएगी और डबल लॉस हो, मतलब डबल लॉस निकाले जैसा होगा. इसलिए एक मिनट, ये एंट्री कर चुके हैं, इसीलिए बैड डेट्स 400. उसके बाद ऐड न्यू बैड डेट्स. अभी नया एक बैड डेट्स है ना 1,000 का, क्योंकि उसने बोला है कि बैड डेट्स नया एडजस्टमेंट में दिया है. सो ये नया है, ये ट्रायल बैलेंस वाला है, ये एडजस्टमेंट वाला है. दिस इज न्यू एंड दिस इज ओल्ड. ये दोनों भी लॉस है इस साल के, इसलिए हमने ऐड किया. उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. यहाँ पर हमने एक रिजर्व निकाला 3%, वो भी यहाँ पर लिया. ये भी लोग देने वाले नहीं है. टोटल ये सब मिला के 2,570 रुपए मेरे आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आए, मतलब इतना मेरा लॉस हो सकता है फ्यूचर में. सो उसमें से लेस ओल्ड. क्यों हम लोग लेस निकाल रहे हैं? क्योंकि मैंने लास्ट ईयर क्या कर रहा था, कुछ प्रॉफिट निकाल के रखा था. कितना निकाल के रखा था? 1,000 का निकाल के रखा था.
अभी नया मैं लॉस निकाल के रख रही हूँ, फिर और ये 1000 क्यों रखूंगी, ये लेस करने का, ठीक है। तो इतना, ये अच्छी तरह याद रखो। ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये लॉस नहीं है, लेकिन वो लॉस के लिए हम लोग कुछ पैसे निकाल के, प्रॉफिट निकाल के रखते हैं। सो लास्ट ईयर मैंने 1000 निकाल के रखा था, उसमें से ये डिडक्ट करने के बाद जितना बचता है वही अमाउंट रखने का। यस। उसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किसके ऊपर कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना है डिप्रिसिएशन, 37,800 इंटू 5%, तो कितना बचा, 1890, ओके 1890। और सेकेंड डिप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना है, 17,250, 17,250, उस पर 10%, so 1725, okay। so here depreciation land and building कितना है, 1890, और फर्नीचर 725, तो दोनों मिलके कितना हुआ, 3615, ओके। और एक है यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इसलिए इस साइड, अगर रिसीव पेड है तो यहाँ पर आता था पेमेंट साइड, ओके। सो लास्ट दोनों टोटल करें तो कितना हुआ, 35,465, 35,465, 35,465। और नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट $35,465 नेट प्रॉफिट है, और यहाँ पर का टोटल कितना है, 52,680, 52,680। यस। सो अभी ये 34,465 को हम लोग दोनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे, 35,465। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, सिर्फ आपके समझने के लिए, ये फिगर आपको नहीं समझ में आता तो टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है। यस। तो दोनों पार्टनर को 35,460, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, 35,465, ओके। ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से दोनों को डिवाइड देना है, एक शिल्पा और दूसरा कैटरीना, ओके। कैटरीना और इन दोनों को डिवाइड करके देना है। सो रेशियो कितना है दोनों का, ओके। तो रेशियो दिया ही नहीं है, सो इस प्रॉब्लम में दोनों का कितना कुछ है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो मैंने बताया था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया तो डायरेक्टली क्या करने का,
equal ratio 1:1. Okay, so 35 465 into 1 by 112. ओके 1:2 मतलब आधा आधा लेते, आधा आधा लिए तो कितना कितना आता 17 730 17 732, क्योंकि ये और एक को आता 17 733 सॉरी यस, क्योंकि 5 रुपए में से 1 रुपए ज़्यादा तो कोई लेगा, कम तो कोई लेगा. ओके, सो ये दोनों लेंगे. ओके, सो इन दोनों को यहाँ पर लिख लो. शिल्पा का यहाँ पर और कैटरीना का यहाँ पर. Yes. So let's start a balance sheet. As on 31st March 19. Yes guys, let's start. So balance sheet, first here capital, capital, Shilpa, Shilpa's capital 45,000 गिवन इन ट्रायल बैलेंस में दिया है. उसके बाद ऐड नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट उसका, 17,732
17,732 एंड आफ्टर कितना हुआ 62,732 ओके लेस ड्राइंग्स कितना है 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं है सो डायरेक्टली 60,732 ओके ना कैटरीना का कितना है 44,000 उसके बाद एड नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट 17,733 कितना हुआ 62,733 ओके और ड्राइंग्स 3,000 है ना 3,000 कितना बचा फिर 59,733 ओके और उसके बाद बिल्स पेएबल कितना है 17,500 और उसके बाद बिल्स पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज एक है कितना है सैलरीज है सॉरी रॉयल्टीज है सैलरीज नहीं है वेजेस है वेजेस एक है वेजेस कितना है 800 वेजेस और रॉयल्टीज कितना है 1,500 है शायद तो दोनों मिलके कितना हुआ 2,300 उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 बैंक ओवर ओके उसके बाद सन्ड्री डेटार्स कितने सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 बैंक लोन 15,000 okay and here land and building 37,800 less depreciation कितना हुआ 1,890 तो कितना बचा 35,910 इसके बाद फर्नीचर कितना है 17,250 और लेस डिप्रिसिएशन 1,1725 तो कितना बचा फर्नीचर में से उतना गया तो 15,525 ओके लेस सैलरी डेटार्स 40,000 उसमें से लेस बैड डेट्स 1,000 और 39,000 सन्ड्री डेटार्स उसमें से लेस रिजर्व फॉर RDD
1170. So 37. Hmm. 37 8 8 30. Hmm. Cash in hand 20. Cash at bank 8,000. Closing stock 58,000. Advance salary 2,000. Advance to Shahrukh 10,000. Okay. So how much is 1,87,265. Okay, guys. Please do at home. If you want copy it, otherwise you have textbook. But some points is important. When are you doing? Yes, guys. Let's start illustration second. Yes. Illustration third, sorry. Yes. So illustration third. Second one over. Illustration third. What is that? Richa and Julie are partners sharing P&L account in their profit and loss in their capital ratio. From the following trial balance adjustment are required. Prepared or final accounts. So adjustment are given. All as given. So let's start P&L and trading account. Please you have to write in the books of, because I have not sufficient space to write here, but whenever you doing, you write it.
Okay. In the books of Rucha and Julie, trading and P&L account at the year ended, at the year ended. Okay. Yes, those part speed. So what is here? Purchases, trade expenses, salaries, wages, wages and salaries. So here salary is different and wages and salaries is different. So wages and salaries come in the trading account and salaries come in the P&L account. Okay, sales return, household property, office rent, motor car, stock, general expenses, sundry debtors, coal, carriage inward, carriage outward, plant and machinery, capital, Richa, Julie, sundry data, creditors, sales, RRD, bills received, purchase return, adjustment, closing stock. Yes, closing stock is valued at 88,000 cost price and 90,000 market price. So closing stock which we take, market price or cost price, whichever is less, whichever is low, जो छोटा होता है वो लेने का. Okay. Okay. Rucha and Julie withdraw from business to 3,000, 2,000 specially for their personal use. So drawings, Richa is 3 and Julie is 2. Depreciate motor 5%, plant and machinery 7. Reserve for doubtful debts 5% created. Okay. Outstanding wages 800. Goods of 6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of account. So 6,000 का परचेस किया गया है जो बुक्स में एंट्री करना ही भूल गए. ओके, लेट्स स्टार्ट. So first, to opening stock. To opening stock कितना है ओपनिंग स्टॉक? ट्रायल बैलेंस में 89,500. यस. नेक्स्ट, टू परचेस. परचेस कितना है? 48,000. बट एडजस्टमेंट में कुछ दिया है, परचेस सेल्स नहीं, परचेस के बारे में दिया है. लास्ट, गुड्स ऑफ 6,000 वेर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार से हमने लिया है लेकिन उसकी एंट्री डालना भूल गए. सो विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस परचेस, तो ये इसमें नहीं है. सो हमें उसमें लिखना चाहिए. सो अनरिकॉर्डेड, एड अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड परचेस. सो अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है? 6,000. सो टोटल कितना हो गया? 54,000. और इस 54,000 में लेस रिटर्न्स. ओके, परचेस रिटर्न्स. तो परचेस रिटर्न्स कितने हैं? 6,000 के रिटर्न्स है. ओके, 6,000 रिटर्न्स है तो टोटल 48,000. ओके ना. इसके बाद टू वेजेस एंड सैलरी. अगर सैलरीज और वेजेस होता तो P&L अकाउंट में जाता, लेकिन फर्स्ट वेजेस है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट. तो वेजेस एंड सैलरीज 22,800 और ऊपर उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस. एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 800. सो टोटल 36,000. ओके. इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस. सो यस, क्वेश्चन में ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर स्टार क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है. ट्रेड एक्सपेंसेस भी है और जनरल एक्सपेंसेस
ऑफिस एक्सपेंसेस या क्या बोलते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर दिया हो तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डालने का। लेकिन सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस एक ही है और कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो पी एंड एल अकाउंट में डालने का। ओके, यस, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वीडियो में है, आप देख सकते हैं। सो ट्रेड एक्सपेंसेस ये यहाँ पर अच्छी तरह आप होना बोले तो एक बार पॉइंट में लिख लो और एक बार ट्रेड एक्सपेंसेस 3000, उसको छोड़ के क्या है, टू कोल, गैस एंड फ्यूल, कितना है 1000, और टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 800। ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी यहाँ पर बाय सेल्स, सेल्स कितना है 1,48,000, उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या, एडजस्टमेंट में तो सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं है, सेल्स के बारे में मैंने कैसे क्या लिखा है।
Okay. Unrecorded sales. Unrecorded sales, how much cost? 6,000. Add this. So how much the cost is there? 154. Less returns. How much? 8,000. So total 1,46,000. Then after by closing stock, how much? मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होगा कम होगा वो लेने का। एडजस्टमेंट में आपको दो फिगर दिया हुआ है 88,000 एंड 90,000 विच इज लेस 88,000, सो यू हैव राइट 88,000 विच इज लेस। ओके, देन गुड्स विथड्रॉन, बट गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, personal use, withdrawn for personal use, personal use. कौन है? रुचा कितना ली? 2,000, 3,000 और जूली 2,000, तो 5,000। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। सो टोटल 2,39,000, उसमें से माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 93,100 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 2,39,000 दिस इज कैरी डाउन। ओके, कॉपी कीजिए। ओवर, यस, नेक्स्ट। Yes, let's start P&L account. So first, by gross profit, brought down how much cost? 93,100, ये gross profit है। Let's start other expenses. Two salaries, एडवांस कुछ है क्या सैलरीज में? नहीं है, 4,500। ओके, टू डिप्रिसिएशन, मैं वर्किंग नोट नहीं बता रही हूँ, आपको ना तो वर्किंग नोट कीजिए। डिप्रिसिएशन, मोटर कार, मोटर पर 2,000 डिप्रिसिएशन। ओके, कितना परसेंट है मोटर पर? 5% मोटर पर है। और प्लांट एंड मशीनरी 7%, प्लांट एंड मशीनरी पर 7%, तो 7% से कितना हुआ? 966। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, या करूँ मैं वर्किंग नोट्स में? मुझे नहीं लगता कोई करने की ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको लगता है तो मोटर yes, so motor
40 motor van 40,000, so उस 40,000 into 5/100. ओके, दिस इज 2000. और उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी कितने की है वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 13,800 इंटू 7%, तो कितना हुआ 966. ओके, ये डिप्रिसिएशन है. यस, सो डिप्रिसिएशन टोटल मिलके कितना हुआ 2966 डिप्रिसिएशन. इसके बाद टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, ये न्यू है मतलब कि नया बनाना है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है. कितना है 3,400. और ओल्ड लेस RDD, ओल्ड को निकाल देना है. सो कितना बचा 2,200. उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एडवांस है 4,000 पे किया है, जो 2 साल का है बोल के दिया है. दैट मीन्स एक इस साल का है, एक अगले साल का है. जो अगले साल का एडवांस में दिया है वो सिर्फ एक ही साल का इधर बताना है, एक साल का बैलेंस शीट में बताने का. सो एक साल का कितना होता है 4,000 है, तो यहाँ पर 4,000 है. और प्रीपेड लेस प्रीपेड बोला तो एक प्रीपेड दिया है हमने, पहले से ही दे के रखा है, तो इस साल का नहीं है. ओके, सो 2,000 होना है, तो यहाँ पर लिख लो एडवर्टाइजमेंट expenses are 4,000, which is 2 years, for 1 year, 2,000, next year 2,000. okay, yes. एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट कितना है 5,000. उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस 2,500. 2,500 general expenses to carriage outward, 1,300. okay, now let's check, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. so 93,100, 93,100. नेट प्रॉफिट 72,634. अब इसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल के हिसाब से उनका प्रॉफिट दिया गया है, तो मतलब कैपिटल के हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयरिंग दिया गया है. वो कैसे करने का हम लोग उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखेंगे. ओके, इसके लिए हमें so let's do partners capital account.
यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे क्योंकि यहाँ पर रेशियो नहीं है, इक्वली देना है, लेकिन वहाँ पर बोला है कि कैपिटल के हिसाब से हमको देना है। सो कैसे देना है देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये मैं पोज देती हूँ, ये आपको पता है क्या होगा इधर। सो ये रहने दो, यहाँ का मैं सिर्फ ये फिगर आपको बताऊंगी क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉफिट। ओके, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 है, सॉरी ब्रॉट डाउन, और 40,000 है। ओके, उसके बाद ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स 3,000 2,000। इसके बाद 2,000 3,000 निकालने के बाद कितना बचता, तो ये इनके कैपिटल के हिसाब से देना है। तो 8 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 1 4 4 2 4 2:1 रेशियो में उनको देना है। तो ये प्रॉफिट हम लोग देंगे उस हिसाब से, दैट मीन्स 72,000 कितना प्रॉफिट 634 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। यस, सो ये 8 किसका है, 80,000 किसका है, रुचा का है, और ये जूली का है। ओके, ये रुचा क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है उनके कैपिटल के हिसाब से देना है। कैपिटल में ये 8 है तो ये 440 है, तो उस हिसाब से 8 इज इक्वल टू 4 4 1 4 4 2 8 2:1 2:1। यहाँ पर प्रॉफिट है 72,634। हाँ, ये टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ओके, सो इस नेट प्रॉफिट में से दोनों को 2:1 में 2 रुचा और ये जूली, 4 जूली है तो 2:1 और ये जूली को। ओके, सो 72,634 इंटू 2 2 प्लस 1 3, सो दिस इज 3, तो कितना आया 48 2 4 2 3। ओके, 42 कैपिटल, 2 नेट प्रॉफिट, फिर ट्रांसफर टू कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रुचा को कितना आएगा 48 423, और बचा हुआ अमाउंट 24, और इसे कितना आएगा 1/3 इज इक्वल टू कितना आएगा 24,211। सो जूली 24,211। हाँ, यस, ओके। सो इस हिसाब से यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट 48 423 423, और ये 24,211। तो दोनों का बैलेंस करने पर क्या आएगा 128 423
64,211. Okay, 64,211, 128,433. Okay, सॉरी 23. ओके, उसमें से ये माइनस करने पर कितना आएगा? 1,25,423. और यहाँ पर 62,211. दैट मीन्स न्यू कैपिटल दिस इज टू बैलेंस कैरिड आउट. तो अभी नेक्स्ट ईयर का ये था, इसके बाद इतना हुआ उनका बैलेंस. ओके गाइज, ये आपकी वर्किंग नोट है. ये अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो. यहाँ का मैंने बोल दिया है, आप अच्छी तरह कॉपी करो. Yes guys, time is going out. Let's do balance sheet. Yes. So balance sheet, first capital. रुचा का कितना था? बैलेंस कैरी डाउन 1,25,423. And Julie 62,211. Okay, this is outstanding wages. $1,87,734. इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 800. और क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 प्लस अनरिकॉर्डेड कितना है? 6,000. दोनों मिलके 28,000. ओके, और परचेस अनरिकॉर्डेड परचेसेस. बिल्स पेएबल कितना है? बिल्स पेएबल 12,000. तो यहाँ पर क्या क्या है? मोटर वैन 40,000 लेस depreciation 5%, 2,000. So total 38,000. Next, plant and machinery 13,800. उसमें लेस डिप्रिसिएशन 7%, 966. सो कितना बचा? 12,834. ओके, नेक्स्ट डेटार्स 62,000. उसमें से अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है? 6,000.
total 68 less RDD 5%, 3,400, 64,500, closing stock 88,000, prepaid advertisement 2,000, और freehold property 23,000, 228 437, 228 437. Okay, this is balance. Please copy this.